So, hello everyone, welcome to Maneuver MCA CD podcast. So, today we have Mohammad Mas from Mumbai, and his score is 95.91 percentile. So, today in this podcast, we will try to understand what was his preparation strategy and how was the actual exam. Each and everything we will discuss in this podcast. So, first of all, congratulations, Mas. Thank you so much, sir. So, when you saw your results, how was your expectation? It means what was your expectation and as per the result? Sir, my expectation was this much only, but I was very happy to see my result, and it made me feel overwhelmed. And it was a very good experience with Maneuver about the classes of MCA. They taught us very nicely, sir. Okay. So, first of all, just tell us about your educational background. It means you belong to which background, academic? I've completed my SSC from St. Paul's High School, Mira Road, my Okay. HSC from Asmita College, and I've done my graduation in Bachelor in Computer Applications from Srimati PD Hinduja Trust, Institute of Okay. Management Studies, Mumbai. Okay, so why MCA? I've completed my BCA and I'm looking forward for a career in IT. So the best option I got is MCA. So I started the preparation for MCA CET. Okay, so are you preparing for any other exam? It means only MCA CET or any NIM CET also? No, I was just doing for MH MCA CET. Okay, it means your target was only MCA CET. Yes, my target was Okay, MCA so CET. for the MCA CET, when you started your preparation? I started my preparation from January first week, Okay. and I got to know about Maneuver in January and February first week. So I Okay. joined Maneuver and started my preparation, continued my preparation from Maneuver. Okay. And what was your exam date? Exam date was 27th March. 27 March, and you started your preparation in January month. Yes, I started my preparation in January first week. तो बेसिकली आपने Maneuver का क्रैश कोर्स ज्वाइन किया होगा. Yes, I've joined offline also in the Borivali class. Okay. I was in the last batch, amalgam batch. Okay, so now we will try to understand कि whatever you study, जो भी आपने क्रैश कोर्स या फिर जो भी Maneuver में ज्वाइन किया, जो भी आपने स्टडी किया, एंड जो भी एक्चुअल एग्जाम्स को अपीयर किया, हाउ इट वाज सिमिलर. इट मींस कितना जो भी एज पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई गई थी और एक्चुअल एग्जाम कैसा था. हाउ वाज द एक्चुअल एग्जाम एज पर प्रिपरेशन तो सर बेसिकली बहुत अच्छे से कराया था हम लोग को. ईच एंड एवरी चैप्टर पे अच्छे से ध्यान दिया गया था. मैथ्स में वी वर हैविंग वेरी नाइस सेशन. देव सर का सेशन होता था एंड देव सर का सेशन वाज टू गुड. और उन्होंने ना एक वर्कशॉप लिया था जिसमें हमें उन्होंने एनालिसिस बताया था कि आप लोग मॉक टेस्ट करो. मॉक टेस्ट के बाद अपने आप को एनालाइज करो कि कौन से चैप्टर में आप लैग कर रहे हो. तो अकॉर्डिंगली मैंने वैसे ही किया और मैंने रोज के 1 या 2 मॉक टेस्ट सर बोलते थे हम लोग को. संडे के 2 मॉक टेस्ट एंड रोज के 1 मॉक टेस्ट. तो वैसा हम लोग ने प्रैक्टिस किया और अकॉर्डिंगली सर रिजल्ट फिर बहुत अच्छा आया. ओके. धीरे स्टार्टिंग में Yes. स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आते थे, बट ग्रेजुअली बढ़ते जाते थे. जैसे हम लोग को पैटर्न मालूम पड़ता था ना, उस हिसाब से बढ़ते जाते थे. Okay, so we will discuss about the mock test part, but before that, as we know, there is a 4 section: mathematics, reasoning, English, and computer. Okay, so which was your strongest area? Which in which section you were weak? To be very honest, sir, सबसे strongest part था मेरा computer concepts and सबसे weak part था मेरा mathematics. जबकि कंप्यूटर का वेटेज 20 मार्क्स है एंड मैथमेटिक्स का वेटेज इज 30 मार्क्स एंड इंपॉर्टेंट है. यस. मैथमेटिक्स में क्या सर, मेरे को थोड़ा ना एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट्स एंड ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा प्रॉब्लम होता था. बाकी सब वो गुड विथ मी, क्योंकि 5th सेम में मैंने क्वांट्स किया था. हम लोग को 5th सेम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट था पूरा. तो उसमें टाइम इन वर्क एंड ऑल सब था. तो उसमें थोड़ा ब्रशन अप हो गया और सर के शॉर्ट टेक्निक्स वो सब बहुत अच्छी थी. Speed match was too good. Okay, my next question is because student those who are preparing for the MCA, उनका सबसे ज्यादा fear होता है मैथमेटिक्स से. So मैथमेटिक्स एक तो अर्थमेटिक है, दूसरा एडवांस मैथ है. तो अर्थमेटिक जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज
ये सब सारे क्वेश्चन आते हैं। तो एडवांस मैथ एंड अर्थमेटिक के क्वेश्चन का बेसिकली वेटेज क्या होता है एग्जाम में? इट मींस नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना, अगर हम उसको एक परसेंटेज से डिवाइड करें कि इतना परसेंटेज 50% अर्थमेटिक से आएगा, 50% क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द एडवांस मैथ। सो एक्चुअल पेपर जो आपने अपीयर किया इस ईयर, उसके बेसिस पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे पाओ तो जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए काफी इजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि मैथमेटिक्स सेक्शन में कहाँ पे फोकस करना चाहिए मेजर एरिया पे। मैथमेटिक्स में देव सर ने हमें बताया था और मैंने वैसे ही किया था और ओके। वही हुआ एग्जाम में। देव सर ने हमें बताया था फोकस ऑन एरिथमेटिक पार्ट मोर, क्योंकि उसके क्वेश्चंस आपको ज्यादा आएंगे। ओके। एडवांस मैथ के बहुत कम आते हैं, लाइक 60-40 का रेशियो रहता है। ओके। एंड जो एडवांस मैथ के क्वेश्चन है दैट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व इन 1 मिनट। हम्म। तो अकॉर्डिंगली सर ने ट्रिक्स बताए थे थोड़ी हमें, तो उससे हम लोग ने किया और रिजल्ट केम गुड। ओके, तो इट मींस आपने बोला कि 60-40 का रेशियो रहता है, तो आउट ऑफ 30 दिस रेशियो विल बी फॉर द अर्थमेटिक एंड एडवांस एंड मैथ के लिए। एडवांस मैथ, यस यस यस। ओके, व्हाट अबाउट द रीजनिंग सेक्शन? क्योंकि उसको लेकर के भी काफी डाउट होता है स्टूडेंट में, और मैं अभी भी क्लास में लेता, जब भी लेक्चर्स लेता हूं तो स्टूडेंट काफी पूछते हैं क्या रहेगा। तो जो एज पर आवर एनालिसिस वो हम गाइड करते हैं, बट यू आर एक्चुअल एस्पिरेंट जो अभी आपने इस साल दिया है। सो इस साल का बेसिकली क्या पैटर्न था रीजनिंग सेक्शन का? इट मींस पजल्स एंड नॉर्मल अर्थमेटिक्स एंड अदर सेक्शन, किस एरिया से क्वेश्चंस आए थे? रीजनिंग में सर ये बार हमें सिटिंग अरेंजमेंट का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, विच वाज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी। ओके। सिटिंग अरेंजमेंट का एक भी क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है सर। राइट राइट, और इट मींस मेरे को पजल्स, यू आर टॉकिंग अबाउट द पजल्स टाइप के क्वेश्चंस नहीं आए थे? नहीं आए थे, बहुत कम थे सर, विच वाज वेरी स्ट्रेंज। हम्म। क्योंकि हम लोग जो क्लास में डिफिकल्टी फेस करते थे वो सिटिंग अरेंजमेंट में फेस करते थे। राइट, तो बाकी अदर ये बार सेक्शन आप, अदर अदर सेक्शन सेक्शन वाज गुड। वाज गुड। यस, ब्लड रिलेशन वाज गुड हम्म। एंड एवरीथिंग वाज परफेक्टली फाइन, बट सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम होता था। फिर दिव्या मैम करके थे, उन्होंने भी अच्छा क्लियर किया था सर। ओके। ओके, व्हाट अबाउट द सिटिंग इंग्लिश, अरेंजमेंट, व्हाट अबाउट द इंग्लिश सेक्शन? इंग्लिश वाज आल्सो गुड सर, ज्यादातर सिनोनिम्स के क्वेश्चन थे, ओके, मीनिंग वोकैबुलरीज। बताना था। वोकैबुलरीज, यस यस। ओके, आरसी वाज हाउ मेनी मार्क्स? आरसी वाज सर आई गेस 10 मार्क्स का आया था सर। आरसी दो इट मींस क्वेश्चन, दो आउट दो थे, ऑफ 5 5। 20 क्वेश्चन ना, 20 क्वेश्चन का ही वेटेज है इंग्लिश सेक्शन का। सो आउट यस ऑफ 20, 10 क्वेश्चन वाज आरसी। यस, 2 पैसेजेस आए थे सर। जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन बचा उसमें से सारे वोकैब एंड ग्रामर बेस्ड जो भी क्वेश्चन थे। यस यस यस, और मिसिंग द सेंटेंस, करेक्ट हम्म। ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना, वही सब था सर। बेसिकली आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जो भी स्टूडेंट इसको देख रहा है उसको आरसी पे फोकस करना रहेगा, भले 20 मार्क्स का है, बट आउट ऑफ 20-50% यू कैन सी द वेटेज ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। रीडिंग तो कॉम्प्रिहेंशन। आपको रीडिंग स्पीड काफी अच्छी करनी चाहिए। नाउ कम टू द यस नेक्स्ट पार्ट विच इज कंप्यूटर। सो कंप्यूटर यस के जो क्वेश्चंस के लेवल थे, बेसिकली उनका लेवल क्या था? हाउ इट वाज सर, डिफिकल्ट? ये बात मॉडरेट तो नहीं बोलूंगा सर, काफी इजी थे क्वेश्चंस। ओके, काफी इजी। मॉडरेट तो नहीं बोलेंगे, काफी इजी थे क्वेश्चन। इट मींस कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड का ग्रेजुएट है, बीएससी ग्रेजुएट है, बीएससी आईटी किया हुआ है, बीसीए किया हुआ है, तो वो इजिली अटेम्प्ट कर सकता है। इजीली, काफी इजीली सर कर सकता है अटेम्प्ट। ओके, मतलब थोड़े से सेंसियर वे में अगर प्रिपरेशन कर लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो इजिली कर सकता है। इजीली कर सकता है। सो कंपेयर टू मैनोवर के मॉक टेस्ट से सर, एमसीए का कंप्यूटर कॉन्सेप्ट वाज वेरी इजी। ओके। ओके, इट मींस मैनुअर का जो मॉक टेस्ट है वो थोड़ा सा एबव है उससे। हाँ सर, अबव है, क्योंकि वो प्रिपरेशन के लिए ना, हमारी प्रिपरेशन के लिए ना सब। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द मॉक टेस्ट पार्ट। अभी हमने यस पेपर सर। पैटर्न एनालिसिस कर लिया, डिफिकल्टी वाइज डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मॉक टेस्ट। सो एज यू मेंशन, यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन फ्रॉम द जनवरी मंथ। सो जनवरी फर्स्ट। विद इन दिस प्रिपरेशन पार्ट, हाउ मेनी मार्क यू अटेम्प्टेड? सर मैंने बेसिकली स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स से, क्योंकि ओके। मैथमेटिक्स वाज वेरी टफ फॉर मी एंड मैं चाहता था हम्म। कि मैथमेटिक्स में पूरा फिनिश कर दूं। ओके। तो एक सर सपोर्ट लैक कर रहा था मेरे को। ओके। तो हम लोग 3 फ्रेंड्स का ग्रुप थे, तो हम लोग ने फिर क्लासेस की इंक्वायरी की और हम लोग ने फिर ज्वाइन किया। एंड जो मैथमेटिक्स का पार्ट था वो मेरे लिए सेल्फ प्रिपरेशन वाज टू डिफिकल्ट फॉर मी। हम्म। बाकी सब लॉजिक से सब थोड़ा बिल्ड हो रहा था, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स वाज थोड़ा इजी फॉर मी। हम्म। बट जो ये था मैथमेटिक्स का पार्ट, दैट वाज अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी। ओके, सो बेसिकली कितने फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे आपने? मैंने सर मैनोवर के ऑलमोस्ट पूरे ही कर दिए, 1 या 2 मिस हुए होंगे।
ओके, मतलब सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट आपने किए रहेंगे। एंड मॉक टेस्ट की पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी थी कि पहले कौन सा, क्योंकि ये स्टूडेंट मुझे बहुत क्लासरूम में पूछते हैं, इसलिए मैं रियल जो एक्चुअल एस्पिरेंट है उनसे भी डिस्कस करता हूँ कि जो सक्सेसफुल एस्पिरेंट है उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, तो जो स्टूडेंट या जो भी एस्पिरेंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करे उनको भी आइडिया लग जाए। व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी टू अपीयर द मॉक टेस्ट एंड इन एक्चुअल एग्जाम ऑल्सो? जो आपने मॉक टेस्ट में स्ट्रैटेजी रखा था वही एक्चुअल एग्जाम में था या फिर डिफरेंट था? और जो भी स्ट्रैटेजी थी व्हाट वाज इट? इट मींस कौन से सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना, किस तरह से? सर एक्चुअल में मैं मॉक टेस्ट जब लिखता था ना सर, तो मैं लॉजिक से स्टार्ट करता था, फिर उसके बाद मैं कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स करता था, देन इंग्लिश एंड लास्ट में मैथ। मैथ का मैं पहले ओवरव्यू कर लेता था कि जो मेरे को सही लग रहा है मैं उस पर टिक कर देता था, बाकी सब मार्क फॉर बुक मार्क कर देता था मैं। और जैसे एक्चुअल पेपर की बात सर, उसमें मैंने वैसे ही किया, मैंने मैथ्स का ओवरव्यू किया, बीच में एक इंग्लिश का आ गया था सर। मतलब जम्बल था, पार्शियली जम्बल, यस यस पार्शियली जम्बल। उसमें मैंने इंग्लिश का वो अटेम्प्ट कर दिया था, मैथ्स का ओवरव्यू करते गया था, जो सही लग रहा था मैंने उसको मार्क कर दिया था, बाकी सब बुक मार्क करके रखा था। फिर चालू हुआ था रीजनिंग सर, रीजनिंग का मैंने पूरा अटेम्प्ट किया था, फिर अकॉर्डिंगली इंग्लिश आया था, इंग्लिश अटेम्प्ट किया था, फिर लास्ट में कंप्यूटर कॉन्सेप्ट किया था मैंने, और उसके बाद जो मैथ्स के बचे थे वो मैंने अटेम्प्ट किया था। ओके, सो बेसिकली दिस वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी विद इन द 2 मंथ। आपने काफी अच्छा स्कोर किया है। तो फॉर इट मींस व्हिच कॉलेज यू आर टारगेटिंग, इट मींस फॉर द एडमिशन? सर आई एम टारगेटिंग एसपीआईटी या ठाकुर कांदिवली। Okay, okay, because it's very nearby to you. Yes, yes, it is very near. Okay, so finally, I would like to ask, it means students, those who are planning for the next year, so what are the important area where they have to focus? It means क्या mistake नहीं करनी चाहिए, किस way में preparation करनी चाहिए कि they can score, because within the 2 month आपने preparation के period में your score is 95, so जो अभी से कर रहे हैं या फिर जिनके पास काफी better time है for the preparation के लिए, so they can definitely score more than 99 percentile. So yes. what strategy you can suggest for them? Sir, I'll suggest कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहे, मॉक टेस्ट से हमें अपना एनालिसिस होता है, मॉक टेस्ट से एनालिसिस होता है। और सर जैसे मेरे पास लैक ऑफ टाइम था, उनके पास ज्यादा टाइम है, सो दे कैन डू प्लानिंग वाइज, मतलब दे कैन प्लान अकॉर्डिंगली कि मेरे को ये वीक में पूरा मैथ्स करना है, ये वीक में कंप्यूटर कॉन्सेप्ट करना है, अकॉर्डिंगली वो टाइम टेबल बनाए और उसके थ्रू अगर चलेंगे सर तो दे कैन स्कोर वेरी नाइस, दे कैन स्कोर बेटर देन मी। राइट। सो आपने कोचिंग क्लास भी ज्वाइन किया, सो क्या सजेस्ट करना चाहोगे स्टूडेंट्स को बेसिकली जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? व्हाट इज द बेनिफिट टू ज्वाइन द एनी कोचिंग क्लास? और सेल्फ स्टडी से भी 99 परसेंटाइल 100 परसेंटाइल द पीपल कैन स्कोर? यस सर, ये बच्चे पे डिपेंड करता है। अभी मेरे पास लैक ऑफ टाइम था और मैंने टू बी ऑनेस्ट सर कॉलेज में इतना ध्यान नहीं दिया था मैथ्स पे, तो मेरा मैथ्स काफी वीक था, मैथ्स में मेरे को बहुत लैग कर रहा था, और लॉजिकल रीजनिंग में भी सर सिटिंग अरेंजमेंट एंड ऑल कर रहा था, तो इसलिए मैंने मैनोवर ज्वाइन किया, एंड विच वाज अ वेरी गुड डिसीजन फॉर मी, विच बिकेम अ वेरी बेनिफिशियल डिसीजन फॉर मी। और मैं सजेस्ट करूंगा सर, अगर आपको कोई चीज में लैग कर रहे हो तो आप अपने टीचर्स की हेल्प लो, और अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो टीचर्स की हेल्प लो, और अगर क्लासेस ज्वाइन कर रहे थे इट इज अ वेरी गुड डिसीजन फॉर देम। करेक्ट, बिकॉज जब भी आप ज्वाइन करते हो तो आपको काफी एक ऑर्गेनाइज वे में स्टडी मटेरियल मिल जाता है, और लिमिटेड टाइम आप काफी वेल वे में प्रिपेयर कर लेते हो। ये सब सारे बेनिफिट होते हैं, और कंसिस्टेंट भी रहते हो। जब आप कहीं पे इनरोल करते हो तो एक गाइडलाइंस फॉलो करते हो, एक रूटीन फॉलो करते हो, जो कि सेल्फ स्टडी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। सो डेफिनेटली गाइज, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, दे कैन स्कोर मोर देन 99 परसेंटाइल इजिली, अगर वो प्रिपरेशन थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट करें। आपके सामने बेस्ट एग्जांपल है मोहम्मद मास का, जिन्होंने विद इन द 2 मंथ के प्रिपरेशन में 95.91 परसेंटाइल स्कोर किया है। सो डेफिनेटली एनीवन कैन स्कोर द 99 परसेंटाइल इफ they will start their preparation with the right guidance. Okay, so once again, congratulations, Maz, for your success, and wish you all the best for your future and whatever you are targeting. So achieve it. Thank you so much, sir.